So good morning and welcome to another session. In the last session, we learned the concept of evolutionary mismatch. So those who missed last session, please do see the recording. These are life-changing concepts, and we understood why our thoughts, emotions, and actions, हमारे जो सोच है, हमारे जो emotions है, feelings है, and हम जो कर रहे हैं, उसमें misalignment क्यों है, हमने वो सीखा था. Today we are going to continue with two series हम चला रहे हैं दो series. One is about Soch. Soch means purity, which comes under the first niyam, and along with that we are also learning about intermittent fasting. Okay, so intermittent fasting is not only कि we should eat for a certain period of time and not eat for 14 to 16 hours, but we are understanding the science behind it. Okay, so anybody remembers what we discussed in the last session of intermittent fasting last Friday we did? What logic we understood that and what periods we should eat, what periods we should not eat, and what period is for elimination. Anybody wants to revise for those who are not present? कितने प्रहर होते हैं एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? Our days are divided into how many parts? Nature ने? You have to unmute and say. 4. Sorry? 4. No. 3. 3 parts. Yes. So time क्या होता है वो 3 parts जो है वो? Yeah. Who will say that? Morning what time till what time? 4 to 12. Yeah, 4 to 12. Yeah. Then 12 to 8 and 8 to 4. 12 to 8, 8 to 4. तो मुक्ता दी सुबह जो 4 से लेके दिन का 12 बजे तक का समय वो कौन सा पीरियड है? Elimination. Elimination. Okay, so that time is for elimination, that time is for cleansing. Then 12 से 8 का समय है for digestion because sun is at the top. And जब भी sun बाहर रहता है तो हमारी जठर अग्नि है वो digestive fire is active. And इवनिंग जो 8 PM to morning 4 AM का समय वो है assimilation phase और एक repair phase होता है wherein we sleep, we rest so that we give our body time to heal. Okay, so this was about understanding कि why this logic is there. ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया blindly आप मान गए कि you should eat for 8 hours and fast for 16 hours daily. Let's go deeper into it. Let's go deeper into it. So today we are going to learn another very important concept. This is applicable everywhere in nature. Okay, so जैसे कार का एग्जांपल लीजिए. तो जब एक कार चलती है उसको क्या चाहिए चलने के लिए? What does a car need to run? What does a car need? Fuel, basically fuel. Basically, it needs fuel. And कार से क्या निकलता है? मतलब जब कार जब चलती है तो उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है, राइट? सो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. सो एवरीथिंग जो भी एनर्जी हमारे शरीर में जा रही है वो कन्वर्ट हो रही है. एंड जब वो कन्वर्जन प्रोसेस होता है उसमें एक सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए समझने के लिए. आई विल रिपीट. सम पीपल जॉइन लेट. तो whenever energy is converted from one form to another, जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया कि ये कार नीड्स फ्यूल टू रन बट इट प्रोड्यूसेस सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स. ओके, वैसे ही हमारा शरीर है कि वॉट एवर वी टेक इनसाइड everything is not digested. There are certain byproducts which are generated every second certain byproducts are generated. That is why जो cellular level पे होता है there is a lot of debris मतलब कचरा, DEBRIS, debris. There is a lot of debris which is accumulated at the cellular level. जैसे हम खाना खाते हैं, आप कितना भी प्योर खाना खा लीजिए तो वेस्ट निकलेगा आपके शरीर से, राइट? तो वैसे ही जो वेस्ट रिसाइकलिंग मैकेनिज्म है वो कब हमारा एक्टिवेट होगा? लेट्स सी व्हाट्स द प्राइस. व्हेन विल दैट गेट एक्टिवेटेड? जो रिसाइकल हो रहा है हमारा वेस्ट एट द सेलुलर लेवल. मैंने पास्ट में सिखाया ये. आई टॉट दिस इन द पास्ट. व्हेन डज दिस हैपन? आई थिंक अंजना आंटी टोल्ड. सॉरी, When we are sleeping. one, yes, when we are sleeping. Yes, right, Muktadi. Once when. So what happens when And we sleep? intermittent fasting. So what happens when we sleep? So let's take sleep first. What happens when we sleep? Sleep में कौन सा बॉडी पार्ट हमारा रीजनरेट हो रहा है? मेनली होता तो पूरा शरीर है, बट विच पार्ट gets regenerated when we sleep? Stomach, intestines. No, Our gut, main. gut, No, main. I'm asking about main. our brain. Brain cells, yes. तो जैसे बाय प्रोडक्ट्स हमारे खाने से भी आते हैं वैसे हमारे थॉट्स से भी बाय प्रोडक्ट्स आते हैं. बिकॉज अवर ब्रेन
that also has to process thoughts, that has to process emotions. So much of information is going there. तो एक रास्ता मैंने आपको उस दिन बताया, क्या रास्ता बताया कि जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहा है उसमें हम एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि फुल ब्रेक तो नहीं लगाए, बट यस यू हैव टू मैनेज द अमाउंट ऑफ डेटा योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग, बिकॉज अवर ब्रेन्स हैव नॉट इवॉल्व्ड फॉर सो मच इंफॉर्मेशन, राइट? तो हमें कुछ कुछ ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। एक ब्रेक का मैंने तरीका आपको बताया, विल डू बॉक्स ब्रीदिंग और जस्ट क्लोज अवर आइज एवरी 2 आवर्स। तो उससे एक तो इंफॉर्मेशन कम आएगा, तो कचरा कम बनेगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तब क्या होता है, सर्टेन डिटॉक्सिफिकेशन इज हैपनिंग एट द सेलुलर लेवल इन द ब्रेन। तो देर आर सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज ग्लायल सेल्स, GLIAL, यू शुड नो दिस। सी जब आपको ये लॉजिक समझेगा ना, देन यू विल स्टार्ट, बोलते हैं ना हम स्लीप ज्यादा सोएंगे, हम टाइम से सोएंगे, कि हमें स्लीप का इंपॉर्टेंस मालूम है कि स्लीप में दैट रिसाइकलिंग इज हैपनिंग व्हेन वी स्लीप। ओके, तो वन इज स्लीप, गुड। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, हाउ डू वी एक्टिवेट दैट? अंजना आंटी टोल्ड इट लास्ट टाइम, अंजना आंटी ने टर्म यूज किया था सॉरी, या अंजना आंटी, रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? Autophagy. Autophagy. Yes. So today let's understand also about autophagy and how it is related to the concept of storage. Now suppose आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं, जो सेल्यूलर डेब्री है वो जमा होते जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? सपोज आपके घर में, आपका घर का एग्जांपल लीजिए कि घर की आपने साफ सफाई पूरी बंद कर दी। ओके, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स, क्या होगा? वो भूत बंगला बन जाएगा पूरा, डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, डर्ट हो जाएगा, देयर विल बी लॉट ऑफ लाइक टर्माइट्स, अ लॉट ऑफ कॉकरोचेस, अ लॉट ऑफ डर्ट, सब कुछ। तो अपने शरीर में, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ बॉडी, इफ यू डोंट क्लीन दैट सेलुलर डेब्री, व्हाट विल हैपन इनसाइड योर बॉडी? Lead to diseases. Lead to disease, yes. So this is the reason. Diseases तो बाद में आते हैं अंजना आंटी, see diseases come later on, but it leads to something which is known as entropy. Entropy मतलब क्या होता है? Decaying. So that's why we see so many children जो होते हैं आजकल, their hair are graying very fast. आप अगर नोटिस करेंगे, पहले जो बाल सफेद होते थे 50-60 साल के बाद होते थे, आज हम देखते हैं कि 10-15 साल के बच्चों का भी बाल सफेद होने लगा है। So this is a very very, बोलते हैं ना, apt sign that our bodies are decaying very fast because we are not giving it time for renewal. हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। एक तो हमारा खान पान जो है, हमारे विचार जो हैं, दैट इज ऑल प्रोसेस्ड, मतलब काफी प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, काफी जंक फूड खा रहे हैं, दैट इज बिकम अ मेजोरिटी। वी डोंट ईट इनफ फाइबर, वी डोंट ईट सात्विक फूड्स, काफी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आर गोइंग इनटू आवर बॉडीज व्हिच इज लीडिंग टू accumulation of toxins at the cellular level. At the same time, we are not giving it time for repair. So what autophagy means, autophagy is a very simple term, don't go behind the science of, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, बट एक सिंपल बात है कि हमारे शरीर में 2 तरह के सेल्स होते हैं। तो जो रिसाइकलिंग होता है, भगवान ने हमारे शरीर में ऑलरेडी एक रिसाइकलिंग प्लांट बना के भेजा है, जिसे हमें सिर्फ समय देना है एक्टिवेट होने के लिए, एंड वो हो सकता है सिर्फ एक चीज से, जो है फास्टिंग। ओके, तो आप समझ जाइए कि ये जो समय है, शाम का 8 बजे से जो दिन का 12 बजे तक का समय है, इस समय अगर हम कुछ नहीं खाते हैं, या at least हम towards the end of it have only raw foods which are full of enzymes, which are full of phytonutrients. ये लॉजिक समझिए आपकी, व्हाई आई एम सेइंग दैट। एक तो पहले बात, 8 से लेके 4 बजे तक का समय, उस समय तो हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। यू शुड हैव नथिंग ड्यूरिंग बिटवीन 8 PM एंड 4 AM, एब्सोल्युटली नथिंग। देन बिटवीन 4 and 12, पहले तो कई लोग तो सोते भी हैं, 6-7 बजे तक सोते ही हैं, देन यू एलिमिनेट, देन यू फ्रेशन अप, देन इफ यू फील हंग्री बाय 10 or 12, फील हंग्री, देन हैव समथिंग रॉ। तो दैट विल एक्चुअली हेल्प इन द क्लेंजिंग प्रोसेस में, वो हेल्प करेगा। द फाइबर दैट इज देयर, जो मैंने फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोला, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स, लाइव एंजाइम्स, जो लाइव फूड होता है, दोज आर सर्टेन एंजाइम्स which help in that recycling process. So that's why we suggest you start your day with a green smoothie. It is so powerful. It is like a nuclear bomb for your body, that all that dirt that is being accumulated in your body, that it will help it clean that, उसको क्लीन करने में मदद करेगा। तो सोच, खाली बोलते हैं ना कि खाली विचारों से नहीं आएंगे, खाली बोलने से नहीं आएंगे कि मुझे सोच चाहिए, आई वांट क्लीनलीनेस। हाउ क्लीन आर यू फ्रॉम विद इन? अगर हमारा, बोलते हैं, 9 महीने का पेट हम लेके चल रहे, तो क्या होता है? व्हाट इज दैट फैट? फैट क्या होता है?
दैट इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन अवर बॉडी, कि हमने जितने कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए था हमने सब उल्टा सीधा डाला, तो फैट हमारे ऑर्गन्स पे जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं विसेरल फैट, राइट। एंड व्हाट दैट डज, हमें पता ही है कि ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ सो मेनी डिजीजेस, and it is so common in India now because of such bad food habits, इतना कॉमन हो गया है। तो कहाँ हम सोच की बात करेंगे, कहाँ मेडिटेशन की बात करेंगे, कहाँ हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे, यानी ये शरीर जो फिजिकल है, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर फिजिकल बॉडी ओनली, फिजिकल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सब इतना जानने के बाद भी बोलते हैं कि इफ यू नो समथिंग विच इज गुड फॉर यू एंड इफ यू डोंट डू दैट, तो इट इज लाइक यू आर कमिटिंग सुसाइड। हम बोल रहे हैं कि यू आर एक्सेलरेटिंग योर एजिंग, यू आर गोइंग क्लोजर टू योर डेथ। हम एक तरह से बोलते हैं ना, मौत को बुलावा दे रहे हैं कि हम तो, हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर डेब्री आप समझ के चलिए कि इफ यू डू रॉन्ग थिंग्स, डेब्री विल कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग विद इन, एंड देन डोंट ब्लेम गॉड आफ्टर 20 years कि यार मुझे क्यों ऐसा हो गया, मुझे क्यों ऐसा हो गया, बिकॉज यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। यस, एकादशी फास्टिंग इज गुड। जो अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कल्चर में फास्टिंग को इतना प्रमोट किया गया है, दोज वर नॉट आउट ऑफ द ब्लू, दोज आल्सो हैव साइंटिफिक लॉजिक। सो ट्वाइस अ मंथ reduce your activities. Fasting मतलब मैंने सिखाया कि एकादशी में it's not only food but you have to control your 11 senses. Why? Very important कि it helps your body recover. जो भी हमारा कचरा जमा हो गया है, 15 दिन में जो कचरा जमा होता है, चलो एक बार पूरा सफाया करो, बट ऑन अ डेली बेसिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर वेरी माइंडफुल। बोलते हैं ना, एक वॉचमैन बन जाइए आप। वॉचमैन क्या करता है, हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन क्या करता है? हम्म? कोई भी चोर उचक्का बदमाश को अंदर घुसने देता नहीं है, सबसे आईडी प्रूफ मांगता है, अपना आईडी प्रूफ बताओ, साइन करो तो आपको अंदर आने देंगे। आपके शरीर में जो भी अंदर आ रहा है, क्या क्या हमारे शरीर में अंदर आता है? वन इज व्हाट वी ईट, व्हाट वी सी, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी हियर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैंग आउट विथ। वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आपके शरीर में अंदर जा क्या रहा है। तो ये एक सिंपल तरीका है कि हम टॉक्सिन्स अंदर कम लेंगे तो कम टॉक्सिन्स जनरेट होंगे, राइट। पर जैसे मैंने बोला कि आप कितना भी प्योर चीज खा लीजिए, बाय प्रोडक्ट्स तो आने ही हैं, भले यू आर ऑन अ फ्रूट डाइट, भले यू आर ऑन एनी काइंड ऑफ डाइट, होल फूड, प्लांट बेस्ड, टॉक्सिन्स विल, उसको मौका देना पड़ेगा। टॉक्सिन्स तो बनेंगे ही, बाय प्रोडक्ट्स तो आएगा ही, या इट विल बी वेरी लेस ऑब्वियसली। इफ यू आर ऑन अ होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स विल बी वेरी लेस, बट यू हैव टू गिव इट टाइम फॉर रिकवरी। ओके, तो वॉचमैन मतलब ये मत समझ जाइएगा कि आपको अपना काम धंधा छोड़ के पहरेदारी चालू करनी है, डोंट टेक इट लिटरली, बट बिकम अ वॉचमैन ऑफ वॉट एवर एंटर्स योर बॉडी। एट द सेम टाइम कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टूल टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। पंकज भैया आप भी जो कर रहे थे पहले, प्लीज कंटिन्यू दैट। बहुत सिंपल तरीका है ये। जो भी आपको समय मिलता है आप करिए ये, हजारों बीमारियों से बचेंगे। एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी, जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को टेक ओवर कर लिया कि दे आर डिफाइनिंग अवर थॉट्स। पुट सम ब्रेक्स ऑन दैट ऑल्सो, सर्टन रूल, सर्टन लिमिट्स कि इतने बजे के बाद आपका फोन बंद हो जाएगा। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, बिकॉज जितने ज्यादा विचार भी आते हैं, अवर ब्रेन, बोलते हैं ना कि यू आर यूजिंग योर ब्रेन फास्ट, राइट। तो एक मशीन है, हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है, वो कितना चलेगा, राइट। एक गाड़ी को आप दिन में 10-12 घंटे, 14 घंटा चला सकते हैं। अगर उसी गाड़ी को आप दिन में 24 घंटा चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे। तो सिंपल है, वेरी सिंपल लॉजिक। एवरी 2 hours जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए आप, डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और लाई डाउन इन शवासन और एनी मेडिटेटिव पोस्चर व्हाट यू लाइक, एंड स्लो डाउन योर थॉट्स। Very very important in today's day and age. Nobody thought that this will be the pace of what technology has done with our life. किसी ने नहीं सोचा था कि इतना फास्ट हो जाएगा, and because of that see so many cases of mental illnesses, so many cases of depression, anxiety, suicidal cases इतने ज्यादा आते हैं न्यूज में आजकल। Why? Just because of this thing that our brains are not ready for so much of data, so much of information. ओके, डू सम सेटिंग स्टिल प्रैक्टिस डेली, जो हम क्लास में पहले 10 मिनट करते हैं आजकल। तो लर्न दीज प्रैक्टिसेस। नेट पे भी काफी सारा
बोलते हैं ना, there are certain guided meditations that are there on the internet. That will also, it's a very good technique to slow you down. कैसे हम slow down करें अपने बोलते हैं ना, अपने system को कैसे slow down करें. Next is don't eat frequently. Very simple logic. Whenever you eat, right from your mouth, saliva, जो digestive enzymes होते हैं, from the digestive juices in the body to your pancreas, to your liver, to your kidneys, to your intestines, to your every body part, entire systems get activated to digest that food. तो ये जो सिखा दिया गया कि दिन में 6 से 8 बार हमें खाना चाहिए, this is just making you ill. अगर वो इतना हेल्दी होता तो लोग इतने बीमार क्यों होते? Just think for yourself. तो डोंट ईट फ्रीक्वेंटली, मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स इन अ डे हमें मुंह झूठा करना है. तो सिस्टम बार बार एक्टिवेट ही नहीं होगा. सिस्टम बार बार एक्टिवेट नहीं होगा तो उसकी लाइफ बढ़ती है. ओके, एंड द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, ट्राई ईटिंग मोस्टली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. ओके, बिकॉज दोज आर द इजीएस्ट फूड्स टू डाइजेस्ट, दोज आर द इजीएस्ट टू प्रोसेस इन अवर बॉडीज. तो हम जो खाना भी खा रहे बोलते हैं ना, उसमें वाइब्रेशंस कैसे हैं वो ही बहुत मैटर करता है. सो वेन एवर यू ईट फूड, जो किसी को मार के बोलते हैं ना कि इफ यू किल एन एनिमल एंड ईट दैट, और जैसे हम मिल्क पीते हैं तो मिल्क में क्या होता है, देयर इज इमोशंस ऑफ सेपरेशन. कि काफ को सेपरेट कर दिया गया एट बर्थ. कभी वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस हैं कि जब काफ का बर्थ होता है, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ द काफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, बिकॉज दैट मिल्क इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. उस मिल्क को बेचा जा रहा है फॉर अस. तो कैसे वाइब्रेशंस होंगे? हु विल से what kind of vibrations will be there in that food, of pain, separation. कितना एंजाइटी होता है उस मदर को. सोचिए ना, आपका बच्चा अगर आपसे सेपरेट कर दिया जाए बर्थ के पहले दिन, just because your milk can be sold in the market. So be very mindful, think logically and try it for yourself and then see कि आपके शरीर में क्या क्या फर्क आता है. I like, it's been exactly 2 years now. In August 2022 I met Captain and Rose ma'am at the retreat. August में था, and like it's not an overstatement that my life has changed like 180 degrees when I stopped milk and milk products, and when I adopted this pattern of eating. Yesterday, somebody asked about oil. If this oil is good, that oil is good. This is all marketing funda, that this milk is better than that milk. A2 milk is better than that. This oil, this is cold pressed oil. This is multi-grain. This is millet based. This is this. This is that. See, processed food is generally not good for health. The more you eat food which are in its most natural form, कचरा आपके शरीर में कम से कम जमा होगा. सिंपल लॉजिक. इससे सिंपल वे में कोई आपको सिखा नहीं सकता है. सोच, व्हाट इज क्लेनलीनेस. तो आप समझिए कि आप एक तो कितना अपने शरीर में कचरा जमा कर रहे हैं, एंड कितना आप उसको मौका दे रहे थे रिन्यूअल के लिए. तो ये मत सोचिए आप कचरा अंदर डालते हैं, प्रोसेस फूड, दो पापड़ एंड भुजिया एंड सब डालते हैं अंदर, एंड आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो यू विल गेट अवे विद दैट. नो. एक तो वॉचमैन बनिए कि अंदर क्या जा रहा है उसका ध्यान रखना है. दूसरा, उसको समय देना है हमें रेस्ट एंड रिन्यूअल के लिए. फिर बोलते ना, यू विल प्रैक्टिस सोच इन द राइट स्पिरिट. यू आर लाइक, बोलते हैं कि जैसे महात्मा गांधी ने बोला था ना, आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माय माइंड विद देयर डर्टी फीट. यू हैव टू बी दैट विजिलेंट. बोलते ना कि हमारे शरीर में क्या बोलते हैं कि भगवान का वास होता है, राइट? सब मानते हैं इस बात को. हाँ, जैसे बुआ जी ने कल शाम को सेशन में, आई थिंक मेनी वर देयर, दैट वी आर वॉकिंग टॉकिंग गॉड्स. तो ट्रीट योर सेल्फ ऑल्सो, योर बॉडी ऑल्सो, कि ये भगवान का, बोलते ना, ये शरीर जो है ये उनका घर है. राइट, जैसे बोलते हैं ना भगवान मंदिर में रहते हैं, तो कैसे मंदिर को हम साफ सुथरा रखते हैं. दिस बॉडी इज लाइक अ टेम्पल वेयर इन गॉड रिसाइड्स. ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट. तब आप अपनी, बोलते हैं ना, कदर करना सीखेंगे कि हाउ प्रेशियस यू आर, हाउ प्रेशियस यू आर. सो द डे यू रियलाइज, जिस दिन हमें, बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ एपिफेनी, दैट यू रियलाइज दैट यू आर सो प्रेशियस, यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ बेटर. तो सोच में आज हमने सीखा, काफी कुछ सीखा. प्लीज डू रिवाइज दिस सेशंस अगेन एंड अगेन, मेक नोट्स एंड मेक स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ. जो नया ज्वाइन किए, मेनी पीपल हैव ज्वाइंड रिसेंटली इन द क्लास. Go slow with changes, one change at a time, stick to it, then jump to other change, and then see how your life changes in the next 5 to 6 months. हम करेंगे, this is an ongoing series that will practice for the next 5-6 months. So क्या practice है आज के लिए? Continue with your intermittent fasting, right? Every 2 hours, do some breathing practices, close your eyes, go for a walk, take a break every 2 hours,
relax करिए. At the same time, sleep. Now today, let's focus on the sleep part also. That be very mindful that you try and go to bed by 10 o'clock. जैसे मुक्ता दी ने स्लीप का इंपॉर्टेंस बताया कि काफी सारा रिन्यूअल होता है हमारे स्लीप में भी. तो ऐसा नहीं है कि हम दिन में रात को 3 बजे सो के 12 बजे उठेंगे तो वही होगा. नो, इट्स वेरी डिफरेंट. So try and go to bed by 10, turn off your devices, and then see how your body regenerates faster. You will start growing younger. Okay, come. Sorry, मेरी voice थोड़ी down है because of some cold and cough. Yeah, come. Let's sit on the mat. Let's practice some detoxification at the brain level, at the thought level. Take any comfortable position. We can stop the recording now. Take any meditative